Hey guys, hopefully you people are doing well. Our target was to understand rules regarding bank reconciliation statement. We have already covered the balances, and now the next step is to see different errors possibly present both in cash book और passbook. Errors यहाँ पर मेन हेडिंग है जिसको आपने फॉलो करना है. Okay, now we will see the first error is what. Since I have said both banker and customer are humans and they are using machines or equipments, it's not 100% autonomous process. Even if they are using electronic gadgets like computers, laptops, or even if it is ultra modern equipment, but that equipment is still used by the humans. So human error is always present. Now, errors we will see. The first error is what? You were supposed to write something 1000, 2000, or 3000 at any side, maybe on debit side, maybe on credit side, but you have forgotten to write. आप चाहे मशीन यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, बट एज अ ह्यूमन यू वर रिस्पॉन्सिबल टू पुट 1000 rupees in any account, but you haven't put, you have forgotten. It means the amount which was supposed to be written is not written. ऐसा एरर इसको हम बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन. omit means you have forgotten, or you can call it undercast. अब उसमें क्या हुआ? अगर let's say these are two sides, one of which is debit side and the other is credit side. ओके, एंड डेबिट साइड पर आपको 2 रुपीज़ लिखने थे, मगर आपने अभी तक नहीं लिखे. यू वर सपोज टू राइट 2 रुपीज़ ऑन डेबिट साइड बट यू हैवेंट रिटर्न. इट्स अ मिस्टेक. You may have forgotten, or it can be skipped. Whatever the reason, we are not considered with that. We are not related with the reason, but we are related with the mistake. Mistake is what? You were supposed to write 2 rupees on debit side but you haven't written. Now let me know how this mistake would be rectified. 2 rupees were supposed to be written on debit side, नहीं लिखे तो क्या हल है? उस आप में से कुछ लोग जवाब देंगे उसका आसान हल है कि लिख दें. इफ़ यू हैड फॉरगॉटन a statement or a transaction to write 2 rupees on debit side, you haven't written, just write down. Okay. तो मिस्टेक क्या हुई? हम भूल गए थे. एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है कि वी हैव फॉरगॉटन समथिंग, और हमने कुछ अमाउंट कम लिखी हुई थी. तो इसके लिए रूल बहुत सिंपल है. आपने क्या करना है? अगर डेबिट साइड पे कोई चीज़ कम है तो आपने उसको डेबिट ही रहने देना है. डेबिट डू डेबिट, ये जो मैं लिख रहा हूँ डेबिट, एक्चुअली अंडर कास्ट के अंदर आपने बस इसको फाइनलाइज करना है, इसको लिखना है डेबिट डू डेबिट. इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि करना क्या है. ओके, ये जो कैपिटल लेटर्स है ना, यू विल बी फोकसिंग अपॉन कैपिटल लेटर. जब आपको ऐसा लगे कि डेबिट साइड पे 2 रुपीज़ नहीं लिखे तो आपने उसको डेबिट ही रहने देना है, चेंज नहीं करना. वहाँ जाके 2 रुपीज़ आपने लिख देनी है. लाइक समबडी हैड सेड टू प्लेस योर बुक ऑन टेबल. फॉर एग्जाम्पल, योर फादर, मदर और एनी वन हैव आस्क्ड यू टू पुट योर book on the table, and you have forgotten to put that book on the set side. Suddenly you have reminded again that you are on a mistake. You were asked to put the book on the table, and what you will do, how you can rectify that mistake? You will go again and you will put that book on the table. अगर आपको कहा गया था कि ये किताब जो है टेबल पर रखनी है, वो भूल गए आप, और फिर आपको याद करवाया गया. जब याद कराया गया तो उस गलती को कैसे ठीक करेंगे? आप जाएंगे और उस किताब को दोबारा टेबल के ऊपर रख देंगे. इन द सेम वे यू वर आस्क्ड टू पुट 2 रुपीज़ ऑन डेबिट साइड बट यू हैव फॉरगॉटन. सो व्हाट यू विल डू व्हेन यू आर बीइंग रिमाइंडेड अगेन? यू विल पुट दैट 2 रुपीज़ ऑन द डेबिट साइड. ये है एरर नंबर 1. एंड नाउ वी विल सी एरर नंबर 2. एंड व्हाट इज़ दैट एरर? Error of commission, or it is called overcast.
ज़्यादा लिखना इसको बोलते हैं। ओवर कॉस्ट होगा क्या? ना प्लीज़ डू नॉट मिक्स बोथ द थिंग्स। यू वर सपोज टू राइट 2 रुपीज़, you were supposed not to write anything on debit side. Again, there was nothing to be written on debit side. No amount was needed to write on debit side. Debit side was vacant. Total of debit side was 0. Whatever the sentence you can understand, just please do understand there was no amount present on debit side. But by mistake, you have put 2 rupees on debit side. Now you are not allowed to erase it or to cut it. But these 2 rupees were not supposed to be present on debit side. How you will rectify it? Take your time, pause the video and seek the answer. Question is very simple. 2 rupees were not supposed to be written on debit side, but you have written. It's a human error or it's a mistake. How you will rectify it? So I have said we are not allowed to erase it, we are not allowed to cut it. How would we rectify if 2 rupees were not supposed to be written on debit side? So simply what you will do, you will write additional 2 rupees on the credit side, with which what will happen, effect of debit side will be cancelled with the effect of credit side. Whatever is written on debit side, it is just opposite to the credit side. हम बचपन में जानते हैं कि रूल्स वर इफ़ देर इज़ अ नेगेटिव साइन एंड इट इज़ कंपेयर्ड or related with positive sign, negative and positive will be cancelled with each other. So again, when there was nothing present on debit side, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था डेबिट साइड पर, मगर आप ये खाली थी 2 जगह, and there was no amount. By mistake you have put 2 rupees on debit side. It was a mistake because 2 rupees were not supposed to be written on debit side. अब आप इस गलती को कैसे ठीक करेंगे? आप इसको काट नहीं सकते, आप इसको मिटा नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? यू विल राइट एडिशनल 2 रुपीज़ ऑन क्रेडिट साइड टू जस्ट कैंसल द इफेक्ट ऑफ रॉन्गली रिटर्न 2 रुपीज़ ऑन डेबिट साइड. ऑलराइट, अब इसका रूल जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि आपको अगर नज़र आए कि देयर इज़ एन अमाउंट ऑन डेबिट साइड विच इज़ रॉन्ग, तो इसको आप क्या करोगे? इसको आप ऑपोजिट साइड पे पोस्ट कर दोगे, क्रेडिट साइड पे. और अगर कोई चीज़ क्रेडिट साइड पे रिटर्न है विच वाज नॉट सपोज टू बी रिटर्न, तो आप उसको डेबिट साइड पे पोस्ट कर दोगे, यानी ऑपोजिट साइड पे पोस्ट कर दोगे. अच्छा जी, मैं इसको कैपिटल लेटर में क्यों लिख रहा हूँ? ताकि आपको पता हो कि एक्चुअली आपने करना क्या है. अगर ओवरकास्ट होगा और डेबिट का ओवरकास्ट है तो आप क्रेडिट कर दें, अगर क्रेडिट का ओवरकास्ट है तो आप डेबिट कर दें. होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड रूल नंबर 2. अब इसके अंदर एक रूल जो ऊपर है, मैं वो भी है तो चाइल्डिश, आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए वाइस वर्सा क्या होता है, तो लेकिन मैं आपको वो दूसरा रूल भी ऊपर लिख देता हूँ. ये डेबिट टू डेबिट था. अब अगर लेट्स से देयर इज़ समथिंग लेस इन क्रेडिट साइड, तो आप क्या करेंगे? क्रेडिट साइड ही चूज़ करेंगे उसको करेक्ट करने के लिए. समझ में लग गई बात? अब आपने रूल को कैसे याद करना है कि अगर एरर ऑफ ओमिशन है और अंडर कास्ट है और वो डेबिट है तो डू इट डेबिट, अगर क्रेडिट में कम लिखा हुआ है तो डू इट क्रेडिट. और दूसरा रूल एसोसिएटेड है एरर ऑफ कमीशन के साथ या ओवरकास्ट के साथ. अगर ज़्यादा लिखा है डेबिट साइड पे तो गो टू अपोजिट साइड, यानी क्रेडिट कर दें इसे. एंड इफ़ इट इज़ अ बैलेंस रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड विच इज़ ओवरकास्टेड, तो गो टू द डेबिट साइड एंड राइट द सेम अमाउंट. अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, आपने प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करना है. यहाँ पर यू वर सपोज टू राइट 2 रुपीज़ ओवर हेयर. सब कुछ रेज करते हैं. यहाँ पर 4 रुपये लिखने थे फ़र्ज़ करें, बट इंस्टेड ऑफ 4 रुपीज़ आपने लिख दिए यहाँ पे 6 रुपीज़. एक्चुअल अमाउंट क्या थी जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि एक्चुअली यू वर सपोज टू राइट 4 रुपीज़, बट बाय मिस्टेक यू हैव पुट 6 रुपीज़ ओवर हेयर. तो ये कौन सी गलती है? क्या ये एरर ऑफ ओमिशन है या ये एरर ऑफ कमीशन है? इफ़ यू वर सपोज टू राइट 4 रुपीज़ ऑन डेबिट साइड बट यू हैव रिटन 6 रुपीज़, कुछ भी गलती हो सकती है. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 6 रुपीज़ की जगह आपने 40 रुपीज़ यहाँ पे लिख दी है. 1 ज़ीरो एडिशनल लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप लिखते रहते हैं.
तो बताइए ज़रा कि दिस एरर इज़ अंडरकास्ट और ओवरकास्ट व्हेन यू वर सपोज टू राइट 4 बट इंस्टेड ऑफ 4 यू हैव रिटन 40 रुपीज़। अब कुछ लोग आप में से कह देंगे इट इज़ एसोसिएटेड विद द ओवरकास्ट बिकॉज वी हैव रिटन मोर अमाउंट देन दैट ऑफ एक्चुअल अमाउंट। एक्चुअली वी वर सपोज टू राइट 4, वी हैव रिटन 40। ये गलती अब कैसे ठीक होगी? अब आप सोचिए और एरर पॉज करके एरर बना लीजिए। तो असल में तो आपको लिखना था 4 बट यू हैव रिटन 40, इट मीन्स 36 इज़ द अमाउंट विच हैज़ बीन ओवरकास्टेड। 4 पे असल में लिखने थे तो 40 लिख दिए। अगर 4 लिखते तो यहाँ पर अब 40 लिखा हुआ है, इसका मतलब 36 रुपीज़ डिफरेंस। याद रखिएगा आप, डिफरेंस हम ले रहे हैं तो वो 40 रुपये आपने ज़्यादा लिख 36 रुपये आपने ज़्यादा लिख दिए हैं। अब उसका इफ़ेक्ट कैंसिल करने के लिए आप क्या करोगे? ऑपोजिट साइड पे जाओगे और 36 लिख दोगे। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, 40 डेबिट हो रहे हैं और 36 क्रेडिट हो रहे हैं। डिफरेंस इज़ व्हाट 4, तो वही आपके पास एक्चुअल आ जाएगी। अंडरस्टैंड कर लिया आपने? आप दूसरी सूरत में आप यहाँ देखें एरर ऑफ कमीशन में, उसको भी समझते हैं साथ में। अगर फ़र्ज़ करें कि आपको डेबिट साइड पर 40 लिखने थे, लेट्स से डेबिट साइड पे 40 लिखने थे एंड बाय मिस्टेक यू हैव मिस्ड 4 और 0, तो अब 40 की बजाय इंस्टेड ऑफ राइटिंग 40 रुपीज़ यू हैव जस्ट रिटन 4 रुपीज़। अगर 4 पे लिख दिया, आप इस गलती को कैसे ठीक करेंगे? लिखने कितने थे 40 और लिखे कितने 4। इसका क्या दूसरा मतलब है कि 36 आपने नहीं लिखे हुए। एक्चुअल अमाउंट कितनी है 4 एंड यू हैव रिटन जस्ट 4 डेबिट साइड पे। तो अब आप क्या करेंगे, आप डेबिट साइड पे ही जाइए और वहाँ पर जो नहीं लिखे वो कितने हैं 36, तो वो आप यहाँ पर डेबिट साइड पे पुट कर देंगे। ये हमारा अंडरकास्ट का रूल है और ये हमारा ओवरकास्ट का रूल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, और इसको आप रिवर्स करें दोबारा और फिर से सुने तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर वे के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। सो दीज आर द रूल्स विच आर एसोसिएटेड विद एरर्स। अब तीसरा आप रूल पढ़ने लगे हैं, दिस इज़ लिटिल डिफरेंट। उसको अंडरस्टैंड करना भी थोड़ा सा अलग तरीके से है, तो उसके लिए पहले अपना माइंड प्रिपेयर कर लीजिए। मुझे आपके ब्रेन का कुछ हिस्सा चाहिए सो दैट वी कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा जी, अब यहाँ पर आएँ, गलती को पहले देखते हैं कि जो आपका नेक्स्ट एरर है उसकी एसोसिएशन किसके साथ है। तो दोबारा मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर भी आप यही चीज़ लिख दें ताकि वो उसके साथ एसोसिएट हो जाए और जो नीचे वाले रूल्स हैं वो फिर साइड पे ही रहे, अलग अलग ही चलाते रहते हैं। अच्छा ओके, अब आपने यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि वही डेबिट और क्रेडिट साइड है जो ऊपर आपने लिखी है, हम इसी को ही कैरी कर लेते हैं आगे अगले एरर को समझने के लिए। गौर से मेरी बात समझिएगा। यू वर सपोज टू राइट 4 रुपीज़ ओवर हेयर। एक्चुअल अमाउंट कितनी हो गई है वो 4 है, और यू वर सपोज टू राइट अपॉन डेबिट साइड हाउ मच अमाउंट आई एम सेइंग 4 रुपीज़। तो अगर आप गलती ना करते तो आप 4 रुपीज़ यहाँ पर लिख देते। ओके, आप गलती ना करते तो यहाँ 4 रुपीज़ लिख देते, बट बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4 रुपीज़ ऑन डेबिट साइड यू हैव रिटर्न 4 रुपीज़ ऑन क्रेडिट साइड। ओके, you were supposed to write 4 rupees you were supposed to write 4 rupees on debit side, so instead of writing 4 rupees on debit side you have written 4 rupees on credit side। अब मुझे बताइए इस गलती को आप कैसे ठीक करेंगे? है तो ये मिस्टेक और इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक। कभी डेबिट की बजाय क्रेडिट हो जाता है, कभी क्रेडिट की बजाय डेबिट हो जाता है, तो इट्स अ कॉमन मिस्टेक। अब इस गलती को ठीक कैसे करना है? वी कैन नॉट इरेज इट, वी कैन नॉट कट इट। ये 4 रुपये को ना हम काट सकते हैं ना मिटा सकते हैं, इसको एज इट इज़ ही लिखा रहने देना है। तो अब मुझे बताइए फिर ये मिस्टेक कैसे ठीक होगी? पहले तो आप अपने माइंड में ना ये बार बार रिपीट करें कि गलती हुई क्या। जो एक्चुअली 4 रुपीज़ थे वो यू वर सपोज टू राइट ऑन डेबिट साइड इन एक्चुअल, लेकिन आपने यहाँ की बजाय क्रेडिट साइड पे लिख दिए। हाउ मैनी एरर्स यू कैन से आर प्रेजेंट इन दिस मिस्टेक? अब ये भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो आंसर इज़ देर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर प्रेजेंट ओवर हियर, वन ऑफ विच इज़ व्हाट, you were supposed to write 4 rupees on debit side but you haven't put 4 rupees on debit side. This is mistake number 1. दोबारा सुनिए, you were supposed to write 4 rupees on debit side but you haven't written. This is first mistake. And second mistake is
यू वर नॉट सपोज टू राइट 4 रुपीज़ ऑन क्रेडिट साइड बट यू हैव रिटन। असल गलती क्या है कि आपने 4 इधर लिखने थे, इधर लिखे नहीं और इधर लिख डाले। तो ये 2 गलतियां आपने की हैं। पहली गलती क्या है कि यू वर सपोज टू राइट 4 रुपीज़ ऑन डेबिट साइड एंड यू हैव नॉट रिटन, यू हैव नॉट रिटन 4 रुपीज़ ऑन डेबिट साइड, ये पहली मिस्टेक। और दूसरी मिस्टेक क्या है कि 4 रुपीज़ वर नॉट सपोज टू बी रिटन ऑन क्रेडिट साइड एंड यू हैव रिटन। इसलिए इस एरर का जो नाम हमने रखना है दैट इज़ डबल एरर। अब आप इसको एक नया एरर का नाम देंगे दैट इज़ डबल एरर। ओके, और ये कैसे होता है जब 2 गलतियां हो रही हों, और 2 गलतियां मैंने आपको बता दी हैं, डेबिट पे लिखा नहीं और क्रेडिट पे लिखना नहीं चाहिए था और लिख दिया। अब मज़े की बात यह है कि इंटरेस्टिंग मैटर इज़ व्हाट हाउ यू विल रेक्टिफाई इट। तो अब आप समझिए कि पहली गलती आपसे क्या हुई थी, वो लिख के कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यू वर सपोज टू राइट ऑन डेबिट साइड बट यू हैवेंट रिटन, ये पहली मिस्टेक आपके पास थी। चलो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। सपोज टू राइट ऑन डेबिट साइड बट नॉट रिटन, ये पहली गलती है आपने कि आपने उसको डेबिट साइड पे लिखना था लेकिन आपने उसको डेबिट साइड पर लिखा ही नहीं है। तो अब आप मुझे ये बताएं इस गलती को कैसे ठीक करेंगे। अगर आपको 4 रुपये इधर डेबिट साइड पे लिखने थे और आपने नहीं लिखे तो आप क्या कहेंगे, ओके याद आ गया तो हम लिख देते हैं। ये पहली गलती आपकी ठीक हो गई। और दूसरी गलती क्या थी कि नॉट टू बी रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड। अब इस गलती को कैसे ठीक करेंगे। ये 4 रुपये तो आपके वैसे ही गलत हैं, यहाँ लिखने नहीं चाहिए थे, मैं इसको रेड कर दिया। ये 4 रुपीज़ बाई मिस्टेक लिखे गए हैं। अब आप यू आर नॉट अलाउड टू कट इट, यू आर नॉट अलाउड टू इरेज इट। हाउ यू विल रेक्टिफाई। तो द 4 which was not supposed to be written on credit side, to cancel the effect of this 4 you will write 4 rupees again on debit side। वो किस लिए, ये आपने इसका ये जो इस तरफ 4 लिखा हुआ है इसका इम्पैक्ट आपने ख़त्म करना था। इस 4 का इम्पैक्ट ख़त्म करने के लिए आपने वो 4 रुपीज़ इधर लिख दिए। और ये 4 जो ऊपर नज़र आ रहे हैं आपको, ये तो उसने लिखे ही नहीं थे तो हमने लिख दिए। अब आप इसको ना रिवाइंड करें, पीछे दोबारा रिवर्स करें वीडियो को और फिर चेक करें कि इस एरर को हमने कैसे ठीक किया, बार बार सुने। अब अल्टीमेटली हमने यहाँ पे भी तो कुछ रूल बनाना है ना। तो रूल कैसे बनेगा, आपने टोटल कलेक्टिवली क्या किया कि जो असल साइड थी उस पर 2 दफ़ा लिख दिया तो आपकी अमाउंट ठीक हो गई। क्लियर हो रही है बात। आपने अगर गलत लिखा हुआ है, वो गलत क्या था, देखिए 4 रुपये आपने गलत साइड पे लिखे हुए थे। पहले इसको ठीक करने के लिए यू हैव रिटन 4 रुपीज़ ऑन ओरिजिनल साइड, और 4 रुपीज़ यू वर सपोज टू राइट ऑन डेबिट साइड, वो जो नहीं लिखे उसको लिखने के लिए यू विल हैव टू राइट 4 रुपीज़। तो वेन एवर यू विल सी द रॉन्ग साइड मिस्टेक तो आपने समझ लेना ये डबल एरर है। उसको भी मैं लिख देता हूँ। डबल एरर क्या होता है कि आपने डेबिट कर दिया है, डेबिटेड इंस्टेड ऑफ क्रेडिट, ये एक गलती है जो आपने कर डाली है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने क्रेडिटेड कर दिया है इंस्टेड ऑफ डेबिट। अब आप प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा कि ये मिस्टेक हमसे हुई क्या है। इसको ज़रा मैं मैनेज करके आपको दे देता हूँ। ये है आपकी गलती जो आपने की, और वो क्या है, डबल एरर। डबल एरर कैसे होता है, आगे पढ़ते जाइए प्लीज़। डेबिटेड इंस्टेड ऑफ क्रेडिट, यानी कि आपने डेबिट कर दिया है बजाय क्रेडिट करने के, और क्रेडिट कर दिया है डेबिट करने के बजाय, दोनों चांसेस हैं। अब इस एरर को आपने ठीक कैसे करना है, तो आपने हमेशा ये याद रखना है यू विल चूज़ डबल अमाउंट, और उसको कहाँ लिखना है आपने, जो उसकी ओरिजिनल साइड है वहाँ पर जाके डबल अमाउंट लिख देनी है। तो ये एरर ठीक हो जाएगा। जैसे कि एक्चुअली यू वर सपोज टू राइट, ये देखें एक्चुअल 4 रुपीज़ डेबिट साइड पे लिखने थे, तो एक्चुअल साइड कौन सी होगी, डेबिट। वहाँ पे आपने गलती को ठीक कैसे किया, डबल अमाउंट लगा के। बिल्कुल इसी तरीके से अब आपने ये समझना है डबल अमाउंट लिखनी है, लेकिन कौन सी साइड, ओरिजिनल साइड पे जाके डबल अमाउंट लिख दें। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। एक्चुअली
ये रूल एसोसिएट है एक्सपेंसेस के साथ। अच्छा, देयर इज़ a chance of an expense which, let's say you are as a customer, you have right to be involved in that expense. You are the customer and you can demand that whenever there is an expense it should be informed and it should be conveyed to you. तो अब आप उस एक्सपेंस को फिर ठीक समझेंगे, बट सम टाइम इट हैपन्स बैंक यूजुअली डू इट if there is any expense which is needed to be done, but without taking your information, but without giving you the information. You are the customer and banker had made some expense on behalf of you and that information has not been given to you. Understand? मैं आपको बताता हूँ. Let's say you have informed your banker that whenever there is electricity bill, just pay on my behalf. और उसकी इंटीमेशन आप पहले ही या परमिशन आपने पहले ही उसको दे दी हुई है. दोबारा सुने. There is an electricity bill and you had informed your banker whenever my electricity bill will arrive. You have given the permission and you have given intimation to your banker that you can deduct amount from my bank account and just pay the bill. लेकिन लेट्स से कि आप खुद ही भूल गए, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया और बैंकर हैड पेड दैट अमाउंट on your behalf. Your electricity bill, your bank account, but according to your instruction, banker had paid that amount to the WAPDA या लेस्को. लेकिन द इंटीमेशन वॉज नॉट प्रोवाइडेड बाय द बैंकर टू यू. कोई मैसेज मिस हो गया, कोई SMS मिस हो गया, इंटीमेशन वॉज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, आपको याद नहीं रहा. तो ये भी तो एक मिस्टेक है ना, आपको ही खुद याद नहीं रहा, लेकिन एक्सपेंसेस हैड बीन मेड. तो अकॉर्डिंग टू यू बैलेंस वॉज सपोज्ड नॉट टू बी डिडक्टेड क्योंकि आपको याद नहीं था, और बैलेंस एक्चुअली हैज़ बीन डिडक्टेड. तो बैलेंस ऑफ कैश बुक वुड नॉट बी अग्रीड अपॉन बैलेंस ऑफ पासबुक. अगर एक्सपेंसेस, ये रूल क्या है, एक्सपेंसेस या वो आपसे बोलेगा कोई चार्जेस हैं डिडक्टेड बाय बैंक और उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक नहीं पहुंची. आप इसमें अगर जगह है तो, नहीं जगह नहीं, चलें लिख देते हैं, विदाउट इंटीमेशन. ये आपकी मिस्टेक है जिसको आपने यहाँ पर समझना है. अगर कोई इफ़ देर इज़ एनी एक्सपेंस विच इज़ डिडक्टेड बाय बैंकर बट विदाउट एनी इंटीमेशन, कोई इतला नहीं मिली या उस वक्त तक इतला जब तक देनी चाहिए थी तब तक इतला आई नहीं है. मिस्टेक समझ में आ गई है. एक्सपेंसेस चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक विदाउट इंटीमेशन, दिस इज़ आवर नेक्स्ट रूल. और अब आप इस गलती को ठीक करके बताएं कि गलती ये ठीक कैसे होगी. दोबारा सुनिए क्या हुआ है कि आप एक और बात समझिए कि कोई इंटरेस्ट चार्जेस हैं, कोई कमीशन के चार्जेस हैं, कोई टैक्सेस हैं, बिजली के बिल हैं, कोई भी ऑपरेशनल एक्सपेंस है जो बैंकर और कस्टमर इन दोनों के दरमियान में देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग दैट बैंक विल डिडक्ट अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर्स अकाउंट. आप समझिए कि रेंट वाज been paid by your banker and you have given the instruction to the bank manager whenever it's first date of any month just pay rental expenses. और किसके रेंटल एक्सपेंसेस हैं, रेंटल एक्सपेंसेस ऑफ कस्टमर. और कस्टमर हैड गिवन इंस्ट्रक्शन टू द बैंकर दैट ऑन फर्स्ट ऑफ ईच मंथ पे रेंटल चार्जेस ऑफ कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर एंड you have given permission to the banker to deduct amount from the account at first of each month. वो आपने ही इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी लेकिन आपको खुद याद नहीं रहा. फॉर एग्जांपल, आई एम बैंकर हैड डिडक्टेड दैट अमाउंट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, या इंटरेस्ट चार्जेस हैं वो बैंक ने डिडक्ट करने ही करने होते हैं, या ऑपरेशनल एक्सपेंस आपने चेक दिया और जैसे पाकिस्तान में है कि इफ़ चेक इज़ रिटर्न फॉर द अमाउंट मोर देन 50,000 तो 0.06% जो है वो डिडक्ट होते हैं. अब आपको ये याद नहीं रहा कि ये रूल बन गया है कि 0.06% डिडक्ट होने हैं. वो एक्सपेंसेस उसने आपको बताए बगैर भी डिडक्ट कर सकता है, डिडक्ट कर दिया, यही वो है विदाउट इंटीमेशन. लेकिन चूंकि आपके माइंड के अंदर नहीं था कि वो डिडक्ट हो गए हुए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको पता ही नहीं है
तो आप तो अपना कैश बुक में बैलेंस कम नहीं करेंगे, लेकिन बैंकर ने पासबुक का बैलेंस कम कर दिया. सो देर विल बी अ डिसएग्रीमेंट. कस्टमर विल से माई अमाउंट शुड बी मोर देन द अमाउंट विच बैंकर इज टेलिंग, और बैंकर कह रहा है कि भाई तुम्हारी अमाउंट कम है, और उसकी रीज़न क्या है कि आपके एक्सपेंसेस डिडक्ट हो गए हैं. तो अब गलती किसकी है? कस्टमर की गलती है, उसको याद नहीं रहा. तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल डू, सिंस दीज ड्यू टू दीज एक्सपेंसेस योर बैंक अकाउंट बैलेंस हैज़ बीन डिक्रीज्ड, और डिक्रीज इन बैंक अकाउंट मीन डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट शुड बी क्रेडिटेड. अब इसका अल्टीमेट इफेक्ट आप ये करोगे कि इस गलती के लिए आप क्रेडिट का वर्ड चूज़ करोगे. जैसे हम सारे एरर्स ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे देख लें दो ही चीज़ें हम सीधा सीधा पढ़ते आ रहे हैं. तो अब आपने जो नेक्स्ट रूल डिसाइड किया है, अगर एक्सपेंसेस और चार्जेस हैं वो डिडक्ट किए हैं बैंक ने और आपको इंटीमेशन नहीं कोई मिली, तो आपने क्रेडिट करना है. आपने एक्सेप्ट कर लेना है कि इट वॉज योर मिस्टेक, यू हैव फॉरगॉटन द रूल दैट बैंकर कैन डिडक्ट अमाउंट from the customer's account directly. So what you will do when you are being reminded, you will say okay, I will decrease my bank balance according to cash book. इस तरह से आप क्रेडिट कर देंगे. अब बिल्कुल इसी के साथ पैरेलल एक रूल चल रहा है कि इनकम या कोई कलेक्शन हो, इनकम और कलेक्शन बाय बैंक विदाउट इंटीमेशन. ये हो सकता है कि चांसेस हैं कि इंटीमेशन हो, और ये भी चांसेस हैं कि विदाउट इंटीमेशन कोई कलेक्ट कर लिया है बैंक ने अमाउंट. दिस इज़ आवर नेक्स्ट मिस्टेक. और इस मिस्टेक की वजह से क्या हो रहा है, बैलेंसेस आर नॉट एग्रीड विद ईच अदर. ये भी लाइन से ज़रा थोड़ी सी बाहर चलेगी, इसको हम मैनेज कर लेते हैं. ओके, अब आप पढ़ सकते होंगे कि आपकी जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो क्या हो रही है. देखें, इनकम और कलेक्शन बाय बैंक है, लेकिन विदाउट इंटीमेशन टू कस्टमर ज़्यादा बेटर वर्ड है, तो आप वो भी लिख सकते हैं. अच्छा, अब आपने एक रूल बनाया बैंकर और कस्टमर ने, और कस्टमर हैड गिवन एन इंस्ट्रक्शन टू द बैंक मैनेजर दैट यू कैन कलेक्ट माई रेंट ऑन बिहाफ ऑफ मी फ्रॉम द टेनेंट एंड डिपॉजिट द सेम अमाउंट डायरेक्टली इनटू द बैंक. ठीक हो गया. या फिर ये भी हो सकता है कि यू हैव फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और सेविंग डिपॉजिट अकाउंट. व्हाट विल हैपन, यू विल रिसीव इंटरेस्ट and that interest will directly be deposited into your bank account, even with or without intimation to the customer. So customer had the account and he had received some interest. That interest has been deposited into the bank account, with which what happened, amount present in bank account has been increased, or customer had no idea. Customer is understanding that amount is less than that of the balance which is told by the banker. अब ये भी conflict आ गया. According to customer amount is less, but banker is telling amount which is more than that of customer's idea. अब उसमें बाद में ये पता चला कि there was some profit on account. Instead of interest we should use profit. Interest is prohibited in Islam, so I am little reluctant to use this word, so I'm using the word profit according to Islamic banking system. All right, so a profit is received, profit is calculated upon customer's account, and that profit has directly been deposited in the customer's account, but intimation to customer has not been given. For example, just giving you a reference. According to customer, his balance is less, but banker is telling a balance which is more than that of customer's point of view. There is disagreement. अब customer को जब ये पता चलेगा तो वो कहेगा ओहो, it was his mistake, he has forgotten it, or intimation would be given to the customer. Then customer will correct his records, and since amount has been deposited in customer's account, amount present in customer has been increased. Amount present in customer's account is an asset. Asset is increase in asset should be debited. So final verdict of this mistake is to do debit. हम हर एंट्री के अंदर बस ये सीख रहे हैं कि हमने डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है. वही सारी चीज़ें करते हुए ये अगले रूल में भी हमने डिसाइड कर लिया क्रेडिट और डेबिट. बस आपने ये याद रखना है, इफ़ इट इज़ एन एक्सपेंस there will be a decrease in bank account. If there is any income, it means there is an increase in बैंकर्स अकाउंट. अगर कोई एक्सपेंस होगा तो एक्चुअली आपने इसको एसोसिएट रखना है
डिक्रीज इन बैंक अकाउंट, और तभी आप इसको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। और इनकम जब हो रही है तो इसका मतलब है देयर इज़ एन इंक्रीज इन बैंक अकाउंट, देयर इज़ एन इंक्रीज इन, ये ज़रा स्पेलिंग ठीक कर लो, इन बैंक अकाउंट, और इसी वजह से आपने इसको डेबिट किया है। और गलती को आपने इसी तरीके से याद रखना है, ये ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर डायरेक्ट ये कहेंगे ना कि एक्सपेंसेस को क्रेडिट किया, तो आपके जो इनिशियल बेसिक रूल है वो भी ख़राब हो जाएगा। एक्सपेंसेस तो डेबिट होते हैं, ये एक्सपेंसेस नहीं है। ये एक्सपेंसेस जो चार्जेस डिडक्ट किए हैं बैंक ने आपके अकाउंट से, इस वजह से आपके अकाउंट में कमी हुई है। डिक्रीज इन बैंक अकाउंट है इसलिए क्रेडिट, ये इंक्रीज इन बैंक अकाउंट है इसलिए ये डेबिट हो गया। ले जी, ये हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया और हमने अभी आगे चलना है। ये कुछ रूल्स हैं जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से एसोसिएटेड है, जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से स्टार्ट किया और स्टेप बाय स्टेप हम करते जा रहे हैं। तो इन्हीं रूल्स को आपने फॉलो करना है। ये हमारा बी पार्ट ख़त्म हुआ है। आप चाहे यहाँ पे ब्रेक ले लें और हम सून वी विल मीट अगेन फॉर द पार्ट सी।